Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Nagin Best Digital Learning. I hope you all are fit and fine. Today, it's me, your English trainer, Vinita, with the ninth chapter, Madam Rides the Bus. Already we have done with the NCRT reading of this chapter from line to line translation. Now we are going to start with the question answers of the same chapter. So, for that, I need to tell you some points that actually in this article, the article focuses on Madam Rides the Bus. In the story, the author is trying to present the world as seen from a child's perspective. The main character of the story is an 8-year-old girl, Valli, who lives near a bus stop in a village. Valli develops a desire to enjoy a ride on the bus. For this purpose, she needs to reduce her expenses so that she can save enough money for the two-way fare. While on her journey, Valli does not want anybody's help and wants to feel independent. She enjoys every bit of her journey to the town, but she is careful enough not to get off the bus in the unknown localities. And on her return journey, a sad accident spoils her mood, but she just keeps it to herself. Thus, she wants to explore more and wishes to go for another ride in the future. This is a sensitive story of a Tamil girl, Valli, who is only 8 years old, and she was literally very curious to know about the outside world. Also, she did not have friends to play, so she keeps standing inside the doorway of her residence and watch people in the street. This was her favorite pastime. However, she was always mesmerized by the bus journey. There traveled a bus between her village and the closest city. She started collecting information about the timings of the bus from her neighbors. The bus travels to the town near her village, which was approximately 6 miles from her village. The fare was 30 paise for one way, so Valli started saving money for the bus fare. She planned to travel in the afternoon when her mother was having her nap. Valli was standing on the roadside waiting for the bus. As the bus came, she told the conductor she wants to go to town. The conductor was a jovial person. He called her madam and showed her the seat. The bus was new and painted in green and white color strips. The bus was comfortable and seats were luxurious. On her journey, she enjoyed watching mountains, green fields, and palm trees grassland. She was experiencing it all the wi- with all for the first time by her own eyes. On her way to the town, she saw a young cow that came in front of the bus while crossing the road. The driver saw, we can say, the driver, yes, the driver blew the whistle and the cow crossed by. All this is a very fascinating for Valli. It was like a dream that come true for her. She was watching everything but the outside landscape
was her prime focus. After some time, the bus reached the final destination and all passengers got down and conductor asked her to get down, but she told that she was there for the bus ride. The conductor smiled listening to her reply. Valli remained on the bus and had taken a return ticket from the conductor. The bus started, and on her way back home, she saw the same cow dead by the roadside. So means she had desire of a small of he had she had a desire for bus riding, and now she had understood the matters of life and death. So let's move to the part of question answers. Before that, we do have a little summary. Vallimai and her pastime. Valliamai was a girl who was known as Valli in short. वल्लीअमाई एक छोटी सी लड़की है, उसको शॉर्ट नेम वल्ली है. She was 8 years old. वो 8 साल की थी. She wanted to know about new things. वो नई नई चीजों के बारे में जानना चाहती थी. It means उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी. And she had no one to play with her of her own age. उसके पास ना उसके कोई मेट्स नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, कोई मतलब सोलमेट्स या प्लेमेट्स नहीं थे जो उसके खुद की एज के इक्वल हो. सो हर फेवरेट पास टाइम, तो अब क्यूरियस तो वो थी, बट फ्रेंड्स में होते हैं, आज बाहर जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, तो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस्ड बनते हैं. बट शी हैड नो वन टू प्ले विद हर. सो हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो फेवरेट पास टाइम था ना, वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस. उसका सबसे मन पसंदीदा जो टाइम पास करने का जो जरिया था ना, वो सिर्फ क्या था, दैट वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस. अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर गेट पर, डोर पर खड़े रहना. दिस ऑलवेज गेव हर न्यू एक्सपीरियंसेस. ये जो था कि उसका खड़े रहना डोर पर, ये उसको ना एक नए एक्सपीरियंस देता था डेली. द बस that traveled from her street to the town fascinated her the most. जो बस थी ना, जो उनके घर के बाहर से अक्सर आया जाया करती थी, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती थी वो उस चीज को देखकर. Looking at the new passengers every time, the bus gave an unending joy to Valli. नए नए पैसेंजर्स को देखते हुए, ये जो देखना, बस को देखना, बस के पैसेंजर्स की तरफ देखना, दिस गेव हर एन अनएंडिंग जॉय. कभी ना खत्म होने वाला आनंद उसको मिलता था इस चीज से. वल्ली वॉन्ट्स टू ट्रेवल इन द बस. वल्ली, अब वो जो फैसिनेटेड पॉइंट था उसका, जो सबसे अट्रैक्ट करता था उसको सबसे ज्यादा, अब उस अट्रैक्टेड पॉइंट ने उसको फोर्स किया हुआ था दैट हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर टू ट्रेवल इन द बस. So every day when Valli watched the bus, हर दिन जब वल्ली बस को देखती थी, she wanted to travel in it. वो उस बस में ट्रेवल करना चाहती थी. And this wish became stronger day by day. और ये जो विश थी, अभी तक की जो उसकी डिजायर थी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो यही थी कि उसको बस में ही ट्रेवल करना है, और उसकी ये विश बढ़ती जा रही थी. शी यूज टू स्टेयर एट द पीपल. वो घूर के देखा करती थी उन लोगों को
while they got up and down the bus. जब वो बस से चढ़ते थे उतरते थे. If one of her friends went on a bus ride, जब उनमें उनकी उसकी फ्रेंड्स में से कोई एक अगर बस राइडिंग के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करता था या कुछ भी एक्सप्लेन करता था ना, तो शी बिकेम जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट. वो बहुत जेलस हो जाती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये तो मतलब मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट विल थी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी. और जब कोई भी उसके बारे में उस बस की राइडिंग के बारे में बात करता था ना, तो वो उस पर चिल्ला पड़ती थी और बहुत जेलस हो जाती थी. Why is it so? Because she had a strongest desire to travel in the bus. She had that desire. So that's why when she heard this type of conversation between her and her friends, so she felt literally jealous and would shout. Nextly, we do have Valli describe details about the bus journey. वल्ली डिस्कवर्स वल्ली अब डिस्कवर्स कर रही है, अब डिटेल्स निकाल रही हो बस जर्नी के बारे में. सो लिटरली वी कैन से दैट फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स. अभी ये पढ़ते हैं कंप्लीट दैट व्हाट एक्चुअली इज गिवन. दैट फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स, बहुत से दिन और महीनों से, वल्ली लिसन टू द टॉक्स ऑफ हर नेबर्स. वल्ली सुनती थी उन बातों को जो उनके नेबर्स जो हैं वो करते थे. एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी. वल्ली सुनती थी उनकी बातों को, नेबर्स की बातों को. एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी, और उन लोगों की बातों को, उन लोगों के कन्वर्सेशन को सुनती थी जो बस में ट्रेवल करने वाले होते थे. मतलब अब उसने ना डिसाइड किया कि अब वो बस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ उसका डेजिग्नेशन है, कितना प्राइस लगता है, कितना टाइम लगता है. ऑल दीज इंफॉर्मेशन नाउ शी वांटेड टू ग्रैब. अब वो कहाँ से ले रही है इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कुछ अपने नेबर्स से और कुछ उन लोगों से जो डेली रूटीन में बस में ट्रेवल करते हैं. शी इवन आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस सिंस दे वर रेगुलर ट्रेवलर्स. शी इवन आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस भी पूछती थी और सिंस दे वर रेगुलर ट्रेवलर्स, उन लोगों से जो रेगुलर ट्रेवल करते थे. अब उसने इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है. अब वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कैसे कर रही है? कुछ लोगों से, पड़ोसियों से पूछ के, उन लोगों से पूछ के जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, या कई बार उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के जो रेगुलर ट्रेवलर्स होते हैं. सो दिस वे शी वॉज एबल टू गेट इवन द मिनट डिटेल अबाउट द बस जर्नी. और इस तरह से करके उसने बस की जर्नी की कंप्लीट डिटेल, एक एक मिनट की डिटेल जो है वो कलेक्ट कर ली. विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शी कलेक्टेड नाउ? द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे. इट मीन 60 पैसे फॉर गोइंग एंड कमिंग. बस का किराया 30 पैसे एक साइड का आने का, और आने का जाने का मिला के 60 पैसे हो गए. एंड द ट्रिप ऑफ द टाउन टुक 45 मिनट्स. और ये जो ट्रिप है ना टाउन का, ये 45 मिनट्स लेता है. शी केप्ट ऑन प्लानिंग. सो वी कैन से दैट द फेयर वॉज 30 पैसे हो गया, 45 मिनट्स का ट्रिप हो गया. शी केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग द थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब वो प्लानिंग कर रही है एंड कैलकुलेट कर रही है चीज़ों को, बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है. और कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की भी हैं बिकॉज उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी. जैसे हमारा कोई एम होता है लाइफ में, तो उस एम को अचीव करने के लिए हम बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती हैं, प्लॉटिंग करनी होती है.
तो उसका एम था, उसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी कि उसको बस में ट्रेवल करना है, और वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकती थी, पेरेंट्स को भी नहीं। अब उसको करना खुद से था, तो उसके लिए वो कुछ प्लान कर रही थी। नाउ वल्ली टेक्स द बस, फाइनली वी कैन से कि वल्ली जो है वो बस पे चली गई, बस टेक कर ली उसने। सो वी कैन से दैट वल्ली took the bus on a spring afternoon. उसने एक स्प्रिंग बसंत ऋतु के दोपहर के समय बस ली। And there were only 6 to 7 passengers in the bus. बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर्स थे। So can you imagine कि हम अपने उस स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर की सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके अच्छे से, नाउ फाइनली शी रीच्ड देयर एंड देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स। वहां 6 से 7 पैसेंजर्स थे। एंड द बस वॉज न्यू, बस बिल्कुल नई थी। उसकी जो सीट्स थी वो बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ही लग्जरीज थी। सीट्स भी बहुत सॉफ्ट, मतलब न्यू सीट्स थी, न्यू बस थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी फीचर्स भी सारे अच्छे थे। जो कंडक्टर था वो एक जॉली सॉर्ट पर्सन था, वी कैन से जोली नेचर था उसका। एंड आस्क्ड वल्ली टू गेट सीटेड राइट अप देयर इन फ्रंट। अब उसने वल्ली को ऑफर किया कि वो राइट साइड अप फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाए। एंड ही एड्रेस्ड वल्ली एज अ मैडम, नॉट ओनली फॉर कमेंट, कमेंट के लिए नहीं, बिकॉज हर नेचर वॉज वेरी जॉली। तो जॉली, इन जॉली नेचर शी he addressed her as a madam. She started looking outside the bus and was attracted by the outside view. उसने बस के बाहर देखना शुरू कर दिया था, एंड शी वॉज लिटरली वेरी अट्रैक्टेड बाय द आउटसाइड व्यू। और वो बाहर के व्यू से बहुत अट्रैक्टेड थी। पहले वो इतना देख नहीं पा रही थी, बट देन शी स्टैंड एट द प्लेस and started looking outside, and literally she was very attracted by each and every view. She could see the canal. अब क्या क्या चीजें उसने देखी? कैनल, palm tree, grassland, distant mountains and blue sky. कैनल देखे, नदियां, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड्स देखे, खेत, माउंटेन्स देखे एंड ब्लू स्काई। मतलब बहुत सा जो भी सिनेरियो उसने देखा, शी वाज लिटरली टेम्प्टेड एंड अट्रैक्टेड दैट बाय दैट। अ काउ रनिंग टुवर्ड्स द बस मेड हर लाफ एंड क्लैप। जो काऊ उसकी तरफ भाग रही थी ना, एक बस की तरफ काऊ भागती हुई आ रही थी, तो उसको देख के ना वो बहुत हंस रही थी, क्योंकि ये सब चीजें ना उसने पहली बार इमेजिन की हैं, पहली बार उसने इन चीजों को देखा है। एंड द काऊ was not moving aside despite continuous honking of by the driver. हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न करने के बाद भी, लगातार हॉर्न देने के बाद भी ड्राइवर के, वो गाय जो है, वो काऊ, वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। So that was very means to say humorous scene for Valli, and literally she was very happy and laughed every time. So I hope you will understand this. But still, but still, when she saw a cow, तो वो बहुत खुश हो गई, हंस रही थी। लेकिन बात ये थी कि वो एक इवेंट था कि बहुत ज्यादा हॉर्न्स बज रहे थे ड्राइवर्स की तरफ से, बट स्टिल वो नहीं देख रही थी। And then Valli reaches the town. अब वल्ली reaches the town, शहर पहुंच गई। बस ली थी, बस की सारी इंफॉर्मेशन, बस पे चढ़ने का उसका जो डिजायर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और प्लस में उसने सारी इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट की हुई थी। अब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हो गई, बस में चढ़ भी गई, टिकट ले ली, और बैठी है सीट पे, हर एक चीज को बाहर से इंजॉय कर रही है। But by face we felt that literally they feel very much burden here.
Okay, so now finally she reaches the town. अब वो town शहर में पहुंच गई. The bus reached the town after some time. कुछ समय के बाद जो बस थी वो पहुंच गई. And Valli was seeing the bright shops and big crowd. उसने बहुत सारी shops देखी, बहुत सारा crowd देखा. She stayed in the bus while the other passengers got down. वो बस में ही रही जबकि बाकी passengers उतर गए. The conductor asked her to get down. कंडक्टर ने उसको कहा नीचे उतरने के लिए, but she told him that she would go back in the same bus. लेकिन उसने कहा कि मैं तो मैं यहाँ पर ट्रेवल के लिए आई थी, बस में ट्रेवल करने के लिए. आई एम नॉट willing to get outside. तो उसने कहा कि आई एम नॉट विलिंग कि मुझे जाना भी नहीं है, नीचे भी नहीं उतरना. एंड द सेम थिंग कि मुझे सिर्फ बस में ट्रैवल करना था, तो उसी रिगार्डिंग जो है मैं वो अभी तक आई थी यहाँ पर, और मुझे अब नीचे नहीं उतरना. आई एम ओके यार. सो शी रिफ्यूज्ड. और मुझे उसने कहा वल्ली ने कंडक्टर को कि उसे इसी बस में वापस अब उसी विलेज में जाना है. And literally she refused his offer of giving her a cold drink as a treat. जब कंडक्टर ने उसको बोला उधर कुछ खा लो, then also she refused. And the main point is that कि when he offered, conductor offered her for a cold drink as a treat, then also she refused. So we can say she is very very smart and she is very determined for his goal, for her goals. कि उसका टारगेट सिर्फ बस में ट्रेवल करना था, नथिंग एल्स. और वो अपने लिए बहुत सेल्फ केयरिंग भी थी. नाउ द रिटर्न जर्नी. अब वापस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है. वली सो द सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी. अब जो चीजें उसने जाते हुए देखी थी वही सारी चीजें वो आते हुए भी देख रही है. शी वॉजंट बोर्ड एंड ग्रीटेड एवरीथिंग with the same excitement she had felt the first time. अब वो बहुत क्या हो रही थी, वी कैन से वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, और वो उसी एक्साइटमेंट से उन चीज़ों को देख रही थी जिस एक्साइटमेंट से उसने उन चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखा था. नाउ सडनली शी सॉ यंग काउ. एक काऊ को देखा जो रोड साइड पे मरी हुई थी. एंड इट वाज द सेम काउ. ये बिल्कुल सेम काउ थी दैट वाज रनिंग टुवर्ड्स द बस व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन. जब टाउन की तरफ जा रही थी ना, तो तभी उसने देख के बता दिया. So be careful about that. She was very surprised and she felt literally very sad when she saw the same cow that it was died. The bus moved on, but the thoughts of dead cow haunted Valli. बस तो चली गई लेकिन उसके माइंड में अब तो यही रहा, वही सैडनेस रही जो उसको कहीं ना कहीं पहले बहुत खुशी दे रही थी. When the bus अब वो she is no longer looked outside the window. अब वो विंडो के बाहर भी नहीं देख रही थी. When the bus reached her village. अब जब बस जो है वो विलेज तक पहुंची at 3:40. She ran straight for home. अब बस पहुंची 3:40 तक और वो सीधा क्या हुआ उसने घर गई. अब वो बिल्कुल सीधा अपने घर गई वापस स्ट्रेट. Her mother did not get to know of her secret journey. और उसकी मम्मा को लिटरली उसके सीक्रेट जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. So now what is the conclusion of the chapter? That the desire of a young girl to take a bus ride from her village to the nearest town, and however on her trip an unfortunate accident taught her the meaning of death and life. और एक ऐसा उसकी ट्रिप के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसको सिखाया
कितना डिस्टेंस है लाइफ और डेथ के बीच में. Okay, I hope you will understand this. Now we do have some NCRT solution questions. It is mentioned in your NCRT book at the page number 119, 1 to 2, and 1 to 5. These are oral comprehension check. What do you understand by oral comprehension check? Oral comprehension check are these questions. These questions are just literally from the internal part of your chapter, जो आपको खुद से find out करके लिखने हैं. So here we do have the first question. What was Valli's favorite pastime? वल्ली का favorite pastime क्या था? Valli's favorite pastime was to stand, खड़े रहना, in front doorway of her house and watch what was happening in the street outside. उसका favorite pastime था because already we have learned about, already we have read about that she do not have any playmates. So her favorite pastime was to stand at the front of doorway of her house and watch also, देखना what was happening in the street. मतलब वो तो उठा लाओ जो देना है, मीन्स टू से कि उसको क्या देना था, उसको वो एक्सपीरियंस, शी वाज वेरी क्यूरियस, उसको देना क्या था, एक्सपीरियंस खुद को, इसलिए वो डोर पे खड़ी रहती थी फ्रंट साइड पे और देखती रहती थी कि गली के बाहर एक्चुअली में हो क्या रहा है. Now if we just discuss about question number 2, so what was the source of unending joy for Valli? Unending joy means कभी ना खत्म होने वाला, मतलब ऐसा enjoyment जो हमें लगता है कि हमारे लिए हमेशा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा. तो उसके लिए वो अनएंडिंग जॉय जो है वो क्या था, एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो थी वो क्या थी, इच्छा क्या थी उसकी. अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज द साइट ऑफ द बस. कभी ना खत्म होने वाली खुशी वल्ली के लिए थी, वो थी जो बस का दृश्य था. When she was in bus and when she saw the outside, what was the sight? So that sight was a source of unending joy, but traveled between her village and her nearest town. Nextly, the travel between her village and the nearest town, वो वाली बस का दृश्य उसको सबसे अनएंडिंग जॉय देता था, जो उसके गांव से पास के शहर में ट्रेवल किया करती थी, filled with a new set of passengers. ओके, सो वो क्या करती थी, नए नए पैसेंजर्स को हर टाइम देखती थी, आते हुए जाते हुए, चढ़ते हुए उतरते हुए, और अब उसकी ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी वाज टू राइड ऑन द बस, कि वो राइडिंग करे बस में. दैट वाज हिज, दैट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर बिकॉज शी वांटेड टू मूव. ओके, शी वांटेड टू मूव इन द बस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? उसने, हमने पढ़ा था कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ग्रैब की थी, तो क्या फाइंड आउट किया उसने बस जर्नी के बारे में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ. एक तो उसने देखा कि वो 6 माइल्स के डिस्टेंस पे है. एक उसने देखा कि उसका एक्सपेंस वन वे का 30 पैसे है. फिर उसने ग्रैब की इंफॉर्मेशन कि 45 मिनट्स का ट्रेवल है, ठीक है, और अगर उसको वापस भी आना है
तो उसको 30 पैसे और देने होंगे। So we can say that कि 60 पैसे हो गए टोटल। And she could return home on the same day. So she find, so 30 पैसे आने का खर्चा, 60 पैसे जाने का, तो टोटल हो गए 60 पैसे। 45 मिनट का ट्रेवलिंग डिस्टेंस था। So she found all the details and listened carefully to the conversation between the neighbors and the people who regularly use the bus. And she also gained information by asking them a few questions. अब ये कॉन्वर्सेशन थी जो नेबर्स और लोगों के बीच में रेगुलर होती थी, और ये इंफॉर्मेशन उसने कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछ के भी कलेक्ट की थी। Actually, she had the strongest desire to travel on the bus, and she wanted to complete it by hook and by crook. So, firstly, for making the plan of each and everything, firstly, she need to collect the information related to the bus. So, for that, she collected all the information by her, by, we just tell that, by his, by his neighbors, by her neighbors, and by the people of bus travelers, and so many information she collected by asking question by herself. खुद से क्वेश्चन पूछे उन्होंने। Okay, so lastly, I am ready to take you that to get some information that she wanted to grab by asking about a few questions. Now she collected all the information. Now she had the information that the designation is at 6 miles away. Fare was 30 paise, one way only, and again she had to pay 30 paise if she want to return from the same bus. The traveling distance is of 45 minutes, and this is the conversation between from where she collected the information. She collected all the information by neighbors, by the people, and some information she gained by asking them a few questions. I hope you will understand this. Nextly, in question number 4, what do you think Valli was planning to? Valli ये plan किस चीज को कर रही थी? क्यों वो information collect कर रही थी? So it's very easy that she was planning to travel on that bus. क्योंकि अभी तक उसको ये बहुत फैसिनेटिंग लगता था, उसको बहुत अट्रैक्टेड लगता था, और वो चाहती थी कि इसका एक्सपीरियंस वो खुद से लेकर आए। तो इसीलिए जब उसकी कोई फ्रेंड्स थी या नेबर में कोई भी था ना, जब उसकी कोई भी एक्सपीरियंस बताते थे ना उस बस के बारे में, तो लिटरली एंड स्कोल्डेड देम। जेलसी हो जाती थी उसको, वो चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस वो अपनी लाइफ का खुद जिए। सो दैट इज द रीजन शी ऑलवेज स्कॉल्डेड हर क्लासमेट्स, हिज क्लासमेट्स, हर क्लासमेट्स। So, why does the conductor call Valli madam? Why does she call? No, I hope you can understand. So, next, why does conductor call Valli madam? अब यहाँ चैप्टर का नाम ही यही है, क्या? मैडम rides the bus. तो मैडम, who is madam? Yeah, conductor had jolly nature and he only called Valli as a madam. Now, why is it so? Because when the conductor stretched out, अब उसने हाथ बढ़ाया टू हेल्प, वल्ली की हेल्प करने के लिए, कि वो बहुत छोटी है और उसको बस में चढ़ाना है, तो एटलीस्ट शी वांट द हेल्प। तो उसने क्या किया, उसको हाथ दिया ताकि वो अंदर आ जाए। बट वल्ली सेड कमांडिंगली दैट शी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ। लेकिन वल्ली ने बहुत कमांडिंग तरीके से उसको बोला दैट शी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ, कि वो खुद से चढ़ जाएगी। कमांडिंग वे से उसको बोला, एंड दैट शी डिड नॉट रिक्वायर हिज हेल्प, और इसके लिए उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट जब कंडक्टर उसको खींच कर लाया
कि उसने क्यों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन द कंडक्टर स्ट्रेच्ड अपना हाथ दिया तो वल्ली वाज कमांडिंगली, उसने बहुत कमांड तरीके से बोला दैट कि उसको किसी हेल्प की, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, एंड दैट शी डिड नॉट रिक्वायर हिज हेल्प, तो इसीलिए उसको कंडक्टर की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। शी डिड नॉट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, उसने वहां बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं किया कि वो एक बच्ची है, बट एज अ ग्रोन अप गर्ल, बल्कि उसने ऐसा बिहेव किया कि वो बहुत ग्रोन अप है, वो बहुत अंडरस्टैंडेबल नेचर की है, सबको बहुत प्यार से रखती है। हाँ। ओके। चुनाव तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, अब बस में जाना चाह रही थी, बस में पहुंच गई, बस में पहुंच गई तो कंडक्टर उसकी हेल्प कर रहा था, बट लिटरली शी एक्ट लाइक अ वेरी ग्रोन अप गर्ल, सो देयरफॉर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम, इसलिए उसको मैडम बोला क्योंकि वो बन रही थी ऐसे। व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड व्हाई व्हाट डज शी सी नाउ, क्या हुआ, अब वो बस में चढ़ तो गई, लेकिन शी वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप ऑन द सीट, she was able to stand up on the seat because she wanted to look each and everything outside. तो अब क्या किया उसने, क्यों खड़ी हुई वो, और उसने क्या देखा, अब वो खड़ी क्यों हुई थी, क्योंकि जहां वो बैठी थी ना, that view was cut off by the canvas blind, विंडो के उसके स्टैंड के अड़ने की वजह से ना, जो बाहर का व्यू था ना, वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो कट हो रहा था, और वो देखना चाहती थी लोअर पार्ट में कि सीन कैसा है, प्रॉपर हर चीज कैसी दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो खड़ी हो गई। सो हेयर वी डू हैव द आंसर दैट वल्ली स्टूड अप on her seat because her view was cut off by the canvas blind, and that covered the lower part of the window, विंडो के नीचे वाला पार्ट जो दिखाई था, देना चाहिए था बाहर का, वो व्यू, वो सिनेरियो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था। सो शी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड, अब वो खड़ी हो गई और उसके ऊपर की तरफ से देखने के लिए वो खड़ी हुई थी कि उसको बाहर का जो सिनेरियो है, जो दृश्य है ना, वो बहुत अच्छे से दिखाई दे। शी सो दैट द रोड वाज वेरी नैरो, उसने देखा कि जो रोड है ना, जो सड़क है, वो बहुत तंग है। ऑन वन साइड ऑफ विच देयर वाज अ कैनल, अब वो रास्ता बहुत कम था, कैसे कि उस रास्ते पे एक साइड तो कैनल थी, नदी थी, एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and blue sky, ये सब चीजें भी थी। यस, सो वी कैन से दैट कि वो वहां पर खड़ी हुई, जहां पर एक तरफ रास्ता बहुत तंग था, एक तरफ कैनल थी, और उसी के साथ दूसरी तरफ palm trees, बहुत सारे माउंटेन्स थे, ब्लू स्काई था, एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप ditch एंड many areas of green fields, और दूसरी साइड पे उसको एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी, और बहुत सारे एरिया, एकड़ जमीन पर हरे भरे खेत थे। सो दीज आर द कंप्लीट सिनेरियो कि she is willing to rest, she is willing to take rest because yesterday only you are having your first day in that bus, and she wanted to clear, she wanted to notice, she wanted to know each and every experience. So for that,
She was simply stand up on the seat and she saw canal, palm trees, grassland, distant mountains, blue sky, deep ditch, and many acres of green fields. Nextly, so if we just want to underline that what were things she had noticed there. So canal, from here we can say palm trees, grassland, and from here distant mountains, blue sky, and another way he had deep ditch, and we can say acres. I hope you will understand this. Nextly, question number 7. What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? वल्ली ने क्या बताया उस आदमी को when he calls, जब उसने उसको एक बच्चा कहकर बुलाया. So when the elderly man called her a child, तो वल्ली ने उसको आंसर दिया that there was nobody on the bus. बस में ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो. She had paid her fare of 30 पैसे like everyone else. अब उसने ये चीज बोली तो उसका रीजन क्या था कि कोई बच्चा होता तो उसको कंप्लीट 30 पैसे थोड़ा ना भरने पड़ते किराए के, लेकिन उसने प्रॉपर 30 पैसे का किराया दिया है तो वो छोटी कैसे हुई. हाँ, अगर कोई बच्चा छोटा होता है बस में और बस वाला उसकी टिकट हाफ देता है, यानी कि 30 पैसे की जगह 15 पैसे लेने चाहिए थे, बट स्टिल शी हैड पेड कंप्लीट 30 पैसे. सो इट मीन्स देयर वाज नोबडी ऑन द बस हु वाज अ चाइल्ड. सो दैट्स व्हाई कि वो अपने आप को मान ही नहीं रही थी कि वो एक बच्ची है. वो बिल्कुल ग्रोइंग अप एज की युवा जवान पीढ़ी की होते हैं ना, ऐसा जो है वो रिसेंबल्ड हो रहा था यहाँ पर. और उसने मेन कमेंट ही इसी बात पे किया कि अगर वो छोटी बच्ची होती वो 30 पैसे नहीं फिल करती, और उसने 30 पैसे सबकी तरह ही फिल किए हैं. Nextly, we do have the question number 8, that why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? अब वल्ली फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहती थी उस बूढ़ी औरत की, क्योंकि हमने ना एक चीज नोटिस की चैप्टर में कि उसका जो मकसद था ना, उसने उस मकसद के अलावा कुछ और नहीं सोचा. एंड दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस कि काम करो इतनी चुपके से कि आपकी सफलता शोर मचा दे. So that was the reason only. She act like as the very strongest and desirable wishes we could have. Okay, so nextly we do have that Valli did not want to make friends with the elderly woman. नहीं बनना चाहती थी वो उसकी सखी, because she found her absolutely repulsive. क्योंकि उसको वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, अजीब सी थी. She saw that the woman had big holes in her car lobes, ear lobes, उसके कान के छिद्रों में बहुत बड़े बड़े उस होल्स थे, and very ugly earrings in them, और बहुत गंदे भद्दे से earrings उसने पहने हुए थे. She could smell the betel nut the woman was chewing, जो सुपारी की स्मेल आ रही थी जो वो वुमेन चबा रही थी, and could see the betel juice that was almost about to spill over her lips. और वो जो सुपारी चबा रही थी ना, तो उसका जो पानी होता है वो क्या हो रहा था, उसका जो जूस वो उसके लिप्स के थ्रू बाहर निकल निकल कर आ रहा था. एंड दैट इज वाई शी डिड नॉट वांट टू सोशलेबल विद हर. वो उससे सामाजिक रूप से नहीं जुड़ना चाहती थी. सो दैट्स व्हाई शी रिफ्यूज, that she did not want to make friend with the elderly woman. Nextly, in question number 9, we do have, how did Valli save up money for her first journey? वल्ली ने पैसे बचाए अपनी पहली जर्नी के लिए, कैसे बचाए? Was it easy for her? क्या उसके लिए आसान था? Valli had carefully saved whatever stray coins came for her way.
वल्ली प्रॉपर केयरफुल थी. Whatever stray coins came her way, जो भी उसके रास्ते में चीजें आई, resisting every temptation, मतलब उसने चिल्लड़ इकट्ठे किए थे. और मेन पॉइंट था कि उसको इतनी टेम्पटेशन थी कि वो फेयर में जा रही है, टॉयज खरीदेगी, बलून्स लेगी, झूले खाएगी, बट शी डिड नॉट यूज दैट मनी एंड फाइनली शी हैड सेव 30 पैसे. She saved, she had saved 60 paise. Okay. Next, it was not easy for her. Was it easy? No. Literally, it was not easy for her, especially at the village fair where she was tempted to ride the merry-go-round as she had the money. वो सच में इजी नहीं था, स्पेशली उस मेले में जाना गई जहां पे उसको इतना लालच था, जहां वो इतनी अट्रैक्टिव फील कर रही थी कि उससे उस बस जर्नी में जाना है, और सॉरी उसको झूले पे झूला झूलना है. हाउएवर शी सप्रेस्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर. वो उसी को पता है कि उसने कैसे अपनी उस दृढ़ इच्छा को दबाया एंड सेव्ड द मनी फॉर द बस राइड. और उसने कैसे भी करके पैसे बचाए सिर्फ बस राइडिंग के लिए. Nextly, we do have what did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली ने क्या देखा जिस बात से उसको इतनी खुशी हुई? वल्ली सो यंग काउ. उसने एक गाय देखी whose tail was high in the air, जो उसकी पूंछ थी हवा में झूल रही थी, running right in front of the bus, बस के बिल्कुल सामने भाग रही थी. इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के किनारे बिल्कुल बीचों बीच बस के सामने भाग रही थी. द बस लॉर्ड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली. अब बस धीरे धीरे चल रही थी, मतलब रुक गई बस, और ड्राइवर ने क्या किया, बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाए. हाउएवर द मोर ही हॉर्न, अब जितना ज्यादा हॉर्न वो बजा रहे थे, द मोर फ्राइटेंड द बस द काउ बिकेम एंड इट केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर. जितना ज्यादा तेजी से वो हॉर्न बजा रहे थे ना ड्राइवर, गाय उतनी ज्यादा डर रही थी और वैसे ही भागती जा रही थी तेजी से. जस्ट राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने. देन वल्ली फाउंड इट सो अम्यूजिंग दैट शी हैड टीयर्स इन हर आईज. वो इतनी खुश हो गई कि खुशी की वजह मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए. एंड एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, सो दैट वाज द थिंग. बाय दैट वे शी मेड हर लाफ. ठीक है. फॉर द सीन ऑफ दैट काउ, कि वो बार बार उसकी जो बस थी वो बार बार हॉर्न बजा रहा था ड्राइवर, बट स्टिल वो जो गाय थी वो क्या कर रही थी, बस के आगे आगे दौड़ रही थी. वो हॉर्न की आवाज सुन के डर रही थी और चल फिर भी वहीं रही थी. बट एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. Question number 12. Why didn't she get off the bus in the bus station? Why didn't she get off the bus? बस स्टेशन से वो बस से उतरी क्यों नहीं? She did not get off the bus station because she had to go back on the same bus. वो बस से इसलिए नहीं उतरी क्योंकि एक तो उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो कुछ लेती या कुछ खरीदती या कुछ खाती पीती, क्योंकि उसको उन्हीं पैसों को यूज करके तो वापस जाना था, उसी बस में वापस जाना था. She took out another 30 पैसे from her pocket. उसने अपनी पॉकेट से बाकी के 30 पैसे लिए and handed the coins to the conductor. पॉकेट से बाकी के 30 पैसे निकाले और वो सिक्के कंडक्टर को दे दिए. She just wanted to ride on the bus. वो सिर्फ बस पे राइड करना चाहती थी, नथिंग एल्स. तो उसका जो एम था, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, वो वैसे ही कंप्लीट हो गई. अब उसको, वो पहले से ना सब कुछ डिसाइडेड करके आई थी कि उसी से वापस आ जाऊंगी,
बीच में नहीं उतरना, क्योंकि कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने के लिए पैसे ही नहीं है। जितने बचाए हैं वो उतने ही बचे हैं जो उसको वापस जाते हुए बस का किराया देना है। एंड शी डिड द सेम। 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट उसने निकाले, handed to the conductor, and she said that I just wanted to get right to ride on the bus. Now in question number 12 we do have, why didn't Valli want to go to stall and have a drink? वो stalls पे क्यों नहीं गई कुछ खाने पीने? And what does this tell you about her? इससे आपको पता क्या चलता है उसके बारे में? Valli did not want to go to the stall and have a drink because she did not have any money for that. क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे. And even when the conductor offered her a cold drink फ्री ऑफ चार्ज, और यहाँ तक कि जब कंडक्टर ने उसके लिए cold drink फ्री ऑफ चार्ज दी, तब भी उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया. शी रिफ्यूज्ड फर्मली, बहुत स्ट्रांगली उसने मना कर दिया. एंड सेड दैट, और कहा दैट शी ओनली वांटेड हर टिकट, कि उसको सिर्फ टिकट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. दिस शोज दैट, इससे पता चलता है दैट वल्ली had lot of self will and pride. सेल्फ विलनेस थी उसके अंदर एक प्राइड था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसके अंदर खुद के लिए. एंड पॉसिबली शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, और इसीलिए वो कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहती थी, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, और एक स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल भी नहीं. सो दैट वाज द मेन पॉइंट. आई होप you will understand. So if I just need to ask some questions, just for your IQ level. So here we just start like yes, discrete questions. What do you understand by discrete questions? The answer is careful questions. So discrete means careful. Okay. And in order to fulfill her desire of traveling by bus alone, she needed to be prepared with all sorts of information, and by that information only it was possible to make plan, to making planning. Okay. Canvas. What do you understand by canvas? Yes, a coarse fabric. Blind partition होता है ना जो विंडो का, जो एक आगे की वाली सीट की तरफ खुलती है और एक पीछे की तरफ की सीट की तरफ खुलती है, उसको बोलते हैं. I hope you will understand. Nextly, from page number 127, we do have thinking about the text. And what is actually given in this? What was Wally's deepest desire? सबसे strongest desire उसकी क्या थी? बस में राइट करना. और हमें कुछ ऐसे words बताने हैं जो बताते हैं कि literally she was uh, very much strong on her desire. An overwhelming desire, stare wistfully, जो उन लोगों को देखती थी, उसका ये बताना कि वो उसके लिए अनएंडिंग जॉय का एक बहुत बड़ा सोर्स है. एंड लास्ट वन, किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स. उसकी लॉन्गिंग्स थी ये, उसकी मतलब तीव्र इच्छा थी, उसका सपना था, उसकी उम्मीद थी, उसका डीपेस्ट डिजायर, जस्ट टेक अ राइड ऑन द बस. She saw every day from her house. Literally, she was standing at the doorway of her house, and literally, she watched, literally, she saw the bus
उसको आते जाते हुए वो देखती थी, और इवन कि कोई एक्सपीरियंस अपना बता रहा होता था ना तो वो उसको शाउट हो जाती थी, और उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको ये लगता था कि मुझे खुद से ही डिसाइड करना है कि वो जो राइडिंग है वो कैसी है। I hope you understand till here. In next video, we will continue with the next question. So thank you. Have a nice day.